لایا ہے چراغ، ایوانی امامت سے لایا ہے چراغ، اور دیار وفا دے کے جلایا ہے چراغ، دیار وفا دے کے جلایا ہے چراغ۔ ہمت ہے کسی میں تو بجھائے آ کر، ہمت ہے کسی میں تو بجھائے آ کر، عباس نے پانی میں جلایا ہے چراغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابو طالب، سخن گزارے منبر سلونی، شہ سوارے لا فتح، امام المتقین، امیر المومنین، اول العابدین، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، باب اللہ، غالب لا کل غالب، آغا جان علی ابن ابو طالب، صلوات۔ وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو میرا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے۔ سورہ مبارک یاسین کی آخری آیات اور حاصل ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی شے کو بنانے کا، پیدا کرنے کا، خلق کرنے کا، تو بس کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے ارادے میں اور چیز کے ہونے میں نہ جدائی ہے نہ دوری ہے۔ کل کی مجلس میں سنا تھا نا کہ جو چیز خلق ہوتی ہے اس میں کچھ پروسیس ہوتے ہیں، کچھ وقفہ ہوتا ہے، نہیں، جو اللہ کا خلق چیز ہے وہاں کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اور جب اللہ کا ارادہ ہے تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف، تمام تسبیحات خدائے واحد کے لیے ہے کہ جس کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ ہم آئے بھی رب کی بارگاہ سے ہیں، جانا بھی رب کی بارگاہ میں ہے۔ تو عزیزان من، میری آج کی مجلس اس کا عنوان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ارادہ الہی کے مظہر ہیں اور فاطمہ ان میں سب سے زیادہ مخصوص ہیں۔
اور فاطمہ کا اور حضرت عباس کا جو رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، وقار حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی شیر تو زہرا امام ہو جاتے۔ انما یعنی یہ حتمی بات ہے، لیکن اللہ کا ارادہ نہ کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے نہ کسی کو دکھائی دیتا ہے، بس یہ پوری کائنات لفظ ارادے پر ہے۔ اور ہماری سانسیں اتنی نہیں آتی ہیں جتنی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں ملتی ہیں۔ پروردگار نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ ایک نعمت کا ذکر خدا کی حمد و ثنا کے ساتھ اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام کے ساتھ۔ یہ دنیا حسین ہے، یہ دنیا دل فریب ہے، یہ دنیا رنگین ہے، کیونکہ ہم اپنی دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس چہرے پر اللہ نے دو چراغ جلا دیے ہیں، اور وہ چراغ جس کا تیل جو ہے وہ نمی ہے، یعنی یہ جو آنکھیں ہیں اس میں اللہ نے نمی قرار دیا، اور اگر نمی نہ ہوتی، یہ تھوڑا سا پانی نہ ہوتا تو یہ آنکھیں سکڑ جاتی۔ اور پھر کیا ارادہ الہی ہے کہ یہ پانی باہر بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر یہ پانی رخساروں پہ بہتا رہے تو رخسار خراب ہو جائیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے جہاں اس پانی کو روکا، وہیں اس آنکھوں کے دو قطروں کو اہم قرار دے دیا۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں جو آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ پہلا قطرہ جب ہم گناہگار ہو جاتے ہیں، جب لغزشیں ہمیں گھیر لیتی ہیں، لیکن شرمساری یہ کہتی ہے جھکا دو اپنی گردن کو، بہاؤ آنکھوں سے آنسو، اور جب ہماری آنکھ سے توبہ کا قطرہ گرتا ہے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا کرم ہے پروردگار عالم کا۔ اور دوسرا قطرہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آواز بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد دوسرا قطرہ عزاداری کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرنے والی نے سوال کیا، مولا جو ہی ذکر ابا عبداللہ حسین آتا ہے ہم رونے لگتے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ امام نے کیا خوبصورت ارادہ الہی بتا دیا۔ کہا پروردگار عالم نے شیعوں کے مٹی میں، ان کی طینت میں چٹکی بھر خاک شفا رکھ دی ہے، اور جب ذکر حسین ہوتا ہے تو یہ ہم نہیں روتے، یہ مٹی روتی ہے۔ اور یہ عزاداری کا آنسو کتنا حسین ہے کہ زخم دل زہرا کی دعا ہے آنسو، زخم دل زہرا کی دعا ہے آنسو، اللہ کے وعدے کی عطا ہے آنسو۔
और जब ये आंसू गिरता है तो कितने ही गुनाहों, समंदर के झागों से भी ज्यादा अल्लाह माफ कर देता है। ये है आंसुओं की कद्र कीमत, ये है आँख का पानी और वो आँखें जो हमारे चेहरे पर रोशन चराग हैं, जो अल्लाह की बड़ी नेमत है इरादा इलाही से। तो अजीज़ान मन, लफ्ज़ इरादा, जब मौला कायनात से पूछा, मौला क्या आपने खुदा को पहचाना? कहा बेशक। मौला कैसे पहचाना? कहा इरादों के टूट जाने से, यानी हम इरादा करते हैं टूट जाता है, खत्म हो जाता है। कुल्लुन फालिन लिमा युरीद, और जो अल्लाह का इरादा है वही पूरा होता है। तो अजीज़ान मन, अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह का इरादा ये है कि जहाँ उसकी खालिकियत है वहीं उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बाकी रखा है। और फिर उसके बाद अली की विलायत है, एक एक मासूम की विलायत है, और अली विलायत का वो दरवाज़ा है, जो इसमें दाखिल हुआ वो कामयाब है, जो पीछे रह गया वो नाकाम। तो अल्लाह का इरादा ये है कि उसने अपने इरादे से अहले बैत को खल्क किया, और जब अहले बैत को खल्क किया तो एक एक फर्द का मकाम बताया। जब बात नबी मुरसल की आई तो कहा कि मा अरसलना का इला रहमतिल लिल आलमीन, नहीं पैदा किया खुदा ने अपने नबी को रहमत बना के भेजा। ये करम इलाही है कि हम फर्शे करम पर बैठे हुए हैं, और जब हम अपने नबी को मानते हैं, उनकी रिसालत को तस्लीम करते हैं, तो हम भी तो अल्लाह का इरादा बन गए। देखिए आईना होता है, आईने में जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी सूरत नजर आती है। अब आईने में और हम में दो ही रहती, एक बन जाता है। हम भी अल्लाह के इरादे से खल्क हुए हैं, और उसने तीनत में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत अता हमें कर दी है। अच्छा इरादा है, तो अगर कोई अल्लाह के इरादे पर चले, अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दे, वफ़व्विज़ अम्री इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, सूरह मोमिन 40वां सूरा और उसकी 44 आयत, कि मेरे परवरदिगार मैंने अपने तमाम उमूर को तेरे हवाले कर दिया, तू ही जानने वाला है, तू ही सुनने वाला, देखने वाला, सब कुछ तू ही है। तो मेरे अंदर अल्लाह का इरादा आ गया, और जब ये अल्लाह का इरादा किसी भी मोमिन के अंदर आ जाए, किसी मुसलमान के अंदर आ जाए कि रज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता। देखिए एक आम इंसान की बात कर रही हूँ, हम तो शियाने हैदर करार, हमारा तो बहुत बड़ा मकाम है। वाक़या है इंडिया का, हिंदुस्तान का। बादशाह ने बंगाल को फतह किया, और जब ये बादशाह लोग फतहमंदी हासिल करते थे तो एक तकब्बुर उनके अंदर आ जाता था, एक खुदसरी उनके अंदर आ जाती थी। और आज भी होता है, एक छोटी भी सीट मुझे मिल जाए ना, मैं बन जाती हूँ, किसी को पूछती भी नहीं हूँ। कोई भी ओहदा मिल जाए, बस मेरे अंदर मेरा हसद, मेरा तकब्बुर परवान चढ़ने लगता है। बादशाह ने फतह बंगाल की और अपने लश्कर के किसी वजीर से कहा, कासिद बना के भेजा जाओ दिल्ली। और उस ज़माने में निज़ामुद्दीन औलिया थे, उनकी विलायत थी। अच्छा हमें ही नहीं पता ये विलायत कैसी थी, बहरहाल तारीख़ में मशहूर है। और उनसे कहलवाया कि बादशाह आ रहा है फतह बंगाल का जश्न मनाने, तो आपको चाहिए कि जब वो दिल्ली के दरवाजे पर पहुँचे तो आप वहाँ मौजूद हों, उसको वेलकम करें। उन्होंने सुना, निकाल दिया। अच्छी बातों को सुनना भी चाहिए, उतारना भी चाहिए, लेकिन उन्हें निकाल दिया। लेकिन कोई ख़ास अच्छी बात तो नहीं थी वो रखते अंदर।
फिर दूसरी दफ़ा कासिद आया, फिर तीसरी दफ़ा आया, और जब तीसरी दफ़ा आया तो कहा अगर तुम नहीं पहुंचे तो समझ लो बादशाह तुम्हें कत्ल कर देगा। बस ये सुनना था। निज़ामुद्दीन औलिया जो अल्लाह के इरादों का मजहर बन चुके थे। एक दफ़ा कहते हैं, बहुत मशहूर मुहावरा है, जो उर्दू पढ़ने वाले, हम सब उर्दू स्पीकिंग है, आना चाहिए, उनोस दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है। इधर ये कहना था बादशाह घोड़े पर था, दिल्ली के करीब पहुंच चुका था, फौरन गिरा घोड़े से और ख़त्म हो गया। देखिए एक आम इंसान का इरादा है, और जो अल्लाह के इरादों का मजहर बन जाए उसकी क्या शान होगी। अच्छा चलिए, हमने ये कमाल अपने अंदर हाजिर किया, हमने नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए, हमने हिजाब किया अल्लाह के लिए, हमने हर बुराई छोड़कर हर नेकी की तरफ आ गए अल्लाह के लिए। अल्लाह ने भी हमें मजहर बना लिया। किस तरह से, जैसे बटन ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है, तो हमारे अंदर भी विलायत की खुशबू आने लगी। हमारे अंदर भी हम हुसैनी बन गए, हम फातिमी बन गए, हम यजीद से दूर हो गए और यजीद पे लानत करने लगे। और क्यों ना करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो अल्लाह के इरादों का मजहर बनने के लिए क्या किया। एक तरफ तो विलायत का जाम पिया, दूसरी तरफ उन पे लानत की। अभी इतनी मजालिस हुई, तकरीबन हर मजलिस में कहा गया, लानत भेजी गई कि लानत पढ़ो। देखिए जब लानत हम ज़मीन पे पढ़ते हैं तो अहसनुल मकाल शेख अब्बास से कुम्मी की किताब की रिवायत है कि लानत यहाँ नहीं रहती, आसमान पे जाती है, और जब आसमान पे लानत जाती है तो आसमान के मलाइका भी लानत करते हैं। और इस तरह से और फायदा क्या होता है, जो रुकी हुई हाजात है वो पूरी हो जाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यजीद लानते इंसानियत का हामिल है। ये लफ्ज़ ही नहीं, किरदार की ज़बानों में हर एक दौर है उसका, हर एक सदी उसकी मेरा हुसैन है छाया हुआ ज़माने में। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद नारे सलावत तो खुदा या अली कहने वालों को सलामत रखे। तो अजीज़ान मन, जब हम अपने उमूर को अल्लाह के हवाले कर दें तो खुदा 3 कमाल हमें अता करता है। पहला कमाल ये है कि दुनिया से हमारा दिल भर जाता है। भाई रहना भी दुनिया में है, यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। रूबानियत इबादत नहीं है कि कोने में बैठ के इबादत करें। अगर अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उन्हीं के दरमियान रहकर हमें ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत, जाह, दौलत, इन तमाम चीज़ों को दिल से निकालना है। जो देता है उस पर आगे सर तस्लीम खम करनी है, कोशिश और मेहनत के साथ। फिर क्या होता है, दिल नूर से मामूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीसरी चीज़ यह है कि रुख हयात बदल जाता है। फिर ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया का लहबुलाब कुछ नहीं कहता, हम अली वाले बन जाते हैं, हम इरादा इलाही का मजहर बनते हैं। और अब इरादा इलाही देखो, सूरह मुबारक अहज़ाब आयत नंबर 33 और 33 नंबर का सूरा है। अजीब खूबसूरत ये मुमासिलत है इसमें। कौन सी आयत सब जानते हैं, मैं शुरू करती हूँ। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद
अच्छा हुआ क्या, रसूल फातिमा के घर में आए। फातिमा का घर बड़ी शान का घर है। कहते हैं फातिमा मुझे ज़ोफ़ हो रहा है, मुझे चादर उड़ा दो। अजीज़ा ने मन, ये बदन का ज़ोफ़ था, ये जहन का ज़ोफ़ नहीं था। शहजादी ने चादर उड़ा दी और हदीस किस्सा के अल्फाज हैं कि रसूल मुबारक का चेहरा ऐसा चमकने लगा जैसे चौधरी का चांद होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे आ गए। बहुत तेजी से बात, क्योंकि हदीस किस्सा सुनी हुई है, जिसको जो परेशानी हो, खौफ हो, हिज़्न हो, खुसूसन बीमारी में इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाए, अल्लाह बीमारी को दूर करता है, फ़िक्र को दूर करता है, हर आने वाले गम को और हर गुजरने वाले गम को दूर कर देता है। हसनैन आए, अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो। फौरन जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या कुव्वतैनी व समरदा फादी। देखिए ये है तहजीब आले मोहम्मद। हमारे यहाँ तो बच्चों को निवाला भी देते ना, छोटे को, जल्दी खा लो अल्लाह बाबा आ जाएगा, पहले ही अल्लाह से दूर कर देते हैं। बहरहाल हसनैन आ गए, उसके बाद मौलाए कायनात आ गए, आप भी चादर के अंदर चले गए। अच्छा थोड़ी थोड़ी अपनी मासूमीन की तशरीह करती जाओ। जब अली आए और चादर के अंदर गए, कौन अली? शब हिजरत याद है ना, अल्लाह के इरादों का मजहर बने थे। रसूल मक्का छोड़कर मदीने चले गए। ये एहसान है रिसालत में आपका, अगर आप मक्के न जाते तो आज हम यहाँ ना होते। इस्लाम सिर्फ मक्के और मदीने का दीन नहीं था, पूरी कायनात आलम का, आलमीन का दीन था। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब उसी हिजरत के सदक़े में है, जिसके लिए कुरान ने कहा, अल्लाह का इरादा बनकर व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। ऐसे भी बंदे हैं जो अपना नफ्स देकर अल्लाह की रज़ा को खरीद लेते हैं। फूलों को कभी इतर लगाया नहीं करते। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु शब हिजरत को मैं मुकम्मल कर लूँ। बिस्तर वही, चादर वही, दस्तार वही है। बिस्तर वही, चादर वही, दस्तार वही है। चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है। और हैरान और परेशान थे, अंगुश्त बदनदान थे सब मक्के के काफिर। सोया तो मोहम्मद, जागा तो अली। नारा हैदरी, नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और उसके बाद जनाब फातिमा आ गई, जो इज़्ज़त मिन्नी है, रसूल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को राज़ी किया उसने रसूल को राज़ी किया, जिसने रसूल को राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। जिसने हसनैन जैसे बच्चे दिए हैं। शहज़ादी की महफिल है, शहज़ादी की शान में पढ़ूंगी। वो बीबी जिसकी सनाएं सभी से सुनते हैं, वो बीबी जिसकी सनाएं सभी से सुनते हैं। रसूल बार गए ईज़दी से सुनते हैं, नबी के दिल का है टुकड़ा नबी से सुनते हैं। अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं। वो बीबी जिसने मुअज़्ज़म किया घराने को, वो बीबी जिसने मुअज़्ज़िज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। खुदा याली कहने वालों को सलामत रखे।
हुई भी जिसने मुअज़्ज़म किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, झुको सलाम करो उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। देखिए चादर तत्हीर की आयत मुकम्मल हो रही है। अब फातिमा भी अंदर हैं, ऐसे में जिब्राइल आसमान से आए, कहा पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? जिब्राइल जानते हैं, जिब्राइल तो कब से जानते हैं, कब तक जानेंगे? हम महदूद, वो बहुत लामहदूद है। लेकिन पूछा ये कौन है? तो अब अल्लाह ने अपने इरादे को जाहिर किया। हम फातिमता वाबूहा वबालो वबनूहा, देखिए अल्लाह का इरादा भी क्या चीज़ है। पानी जिसका काम क्या है? डुबोना। कोई भी पानी हो और बड़ी जगह पे हो, जिसको स्विमिंग नहीं आती यकीनन वो डूब जाएगा। पानी का काम डुबोना है, लेकिन अजीब अल्लाह का इरादा है, दुश्मन को गर्क करता है, मोमिन को बचा लेता है। फिरौन गर्क हो गया पानी में और मूसा अपने लश्कर के साथ निकल आए। आग का काम जलाना है, हर एक को जला देती है, लेकिन नमरूद उसकी हुकूमत खाकिस्तर हो गई और इब्राहीम के लिए वो गिरती हुई चिंगारियां, चटकती हुई कलियां बन गई, आतिश कदा बुल कदा बन गया। कुरान ने कहा कुल्ला या नार कूनी बर्दन सलाम अला इब्राहीम, ऐ आग तो इब्राहीम के लिए सर्दो सलाम हो जा। अल्लाहु अकबर। हमारे हर इस मजलिस को हमारे लिए भी सर्दो सलाम बना दे, हमारे लिए भी खैर बना दे, हर शर से दूर कर दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे दे, जितने हमारे लड़के और लड़कियां हैं उनको बेहतरीन ज़ौक़ दे दे, हमारे बच्चों को इमाम ज़माना का सिपाही बना दे। इरादा इलाही क्या है? इरादा इलाही कोई अगर मछली आ जाए रास्ते में निकल लेती है, बड़ी बड़ी वेल्स खत्म कर देती हैं। मछली का काम निकलना है, लेकिन अजीब बात है कि निकलने के बाद उगल भी देती है। यूनुस को जब के शिकम में मछली निकल गई, हैरान व मुस्तरिब थे निहायत वो उस घड़ी की जस्तजू बहुत ही ये मुश्किल वो हल हुई। आखिर शिकम में माही के तस्बीह यही पड़ी, मुश्किल पड़ी है सर पे मेरे आके अब कठन, मुश्किल मेरी कराइए आसान पंजेतन। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु लाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब इकरार कर लो अल्लाह की वहदानियत का और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तो अल्लाह अपना इरादा बनाकर तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेता है। वास्ता पंजतन का होता है। तो फातिमा इरादा इलाही का मजहर बनी। किस तरह से? पाँच है मकसूद पंजतन, बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन फातिमा अली। नारे हैदरी, नारे सलावत, तो आए तत्हीर की कश्ती बन गई। अल्लाह का इरादा लोगों पे वाज़ेह हो गया। बाक़ी जन्नत में खुदाए अज़ली लिखा है, डाली डाली पर अली और नबी और अली लिखा है, और सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली। हैदरी
इरादा और उस इरादों का मजहर है फातिमा। बस 2 मिसालें और मसाइब की तरफ आना है। क्या शान फातिमा है कि दोनों बच्चों ने तख्तियां लिखी। हसन और हुसैन छोटे थे ना, माँ के पास तख्ती लाए। मादरे गिरामी किसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है? माँ ने कहा फैसला अली करेंगे या रसूल करेंगे, लेकिन दोनों ने कहा नहीं, माँ फैसला करेगी। देखिए ये है माँ का मकाम, ये है माँ की अजमत, इसीलिए उसके पाँव के नीचे जन्नत है। माँ फैसला करेगी। अब माँ फैसला कैसे करे? जब इस फैसले में अल्लाह शामिल होगा तो माँ का इरादा होगा। बस जनाब फातिमा जहरा ने, शहजादी कौनैन ने, राजिया ने, बतूल अज़रा ने अपने गले से हार उतारा, जमीन पर रख दिया, कहा इसके अंदर 7 मोती हैं, जो ज्यादा मोती उठा लेगा उसकी तहरीर अच्छी होगी। एक मोती इमाम हसन ने उठाया, एक इमाम हुसैन ने, एक इमाम हसन ने, एक इमाम हुसैन ने। मोती तकसीम हो रहे थे, एक मोती रह गया। अब अल्लाह का इरादा आया, जिब्रील आसमान से नाज़िल हुए, पर से उस मोती के जो टुकड़े कर दिए, आधा इमाम हसन ने ले लिया, आधा इमाम हुसैन ने ले लिया। फातिमा इरादा इलाही का मजहर बन गई। चले, फातिमा इरादा इलाही का मजहर है। ईद की शब आ गई। मदीने में सब के घर ईद के कपड़े थे, और ये वो घराना है जिसके पास कमी नहीं थी। सारी दुनिया आज तक उनका आबू नमक खा रही है, लेकिन घर में कुछ नहीं है। आन कर हसनैन ने कहा कि मादरे गिरामी हमारे जोड़े। माँ तड़प गई, खुदा हमसे कितना करीब है, रगे हयात से ज़्यादा। बस जनाब फातिमा ने बड़े यकीन के साथ कह दिया, बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। अब जो ही ये जुमला कहा, और ये जुमला मलाइका लेकर आसमान पर गए, और ये तो मैं कह रही हूँ मलाइका लेके गए, जाने की जरूरत नहीं है। फातिमा जमीन पर भी शहजादी है, आसमान में जन्नत की शहजादी है। तमाम लोग साथ साथ बोले, हैदर 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 हैदर। या चूंकि मेरे मौला का नारा लगा है, तो आइए जन्नत के दरवाजे पे पहुंचते हैं, जिसकी कुंडी जो है वो सोने की है, और जो ताला है वो जबरदस्त से मोतियों से मुरस्सा है, सोने और चांदी से। और जो मोमिनीन उस दरवाजे पे पहुंचेंगे और जन्नत के दरवाजे को खटखटाएंगे, तो क्या आवाज आएगी? याली याली याली। हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी याली। सूदिए इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो फातिमा शहजादी कौनैन ने कह दिया कि दर्जी लेकर आएगा, खैयात लेकर आएगा। बस कह दिया, हो गया, इरादा बन गया। और बस आने वाले दरोगे जन्नत ने, रिजवान जन्नत ने दर सैयदा को दक्कुल बाब किया।
दरवाज़ा खोला गया, 2 जोड़े थे ईद के तैयार, एक इमाम हसन का था, एक इमाम हुसैन का था। सुभान अल्लाह। तो ज़दारन इमाम हुसैन, हम भी क्यों शहजादी के इरादे से दूर रहे जो इरादा इलाही है। अब बहुत खूबसूरत किताब क़यामत के 7 मरहले, आयतुल्लाह मोहम्मदी शहरवर्दी की किताब का नाम है, और उसमें ये लिखा है कि जब शहजादी दर जन्नत पहुंचेंगी, खड़ी नहीं, कुदरत की आवाज़ आएगी, मलाइका कहेंगे बीबी अंदर दाखिल हो जाइए। कहती नहीं, आज मैं अल्लाह का फजल देखना चाहती हूँ, आज जो मेरे रब को मुझसे मोहब्बत है वो इनायत देखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। और जो ही शहजादी ये कहेंगी तो अब आवाज़ आएगी कि आप ऐसा करें, जितने आपके शियाने हैदर कल्लार हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं, जितने मोमिनीन हैं, उन सबको लेके जाएं हाथ पकड़कर। और बीवी किस तरह से, जिस तरह से एक तायर दानों में से अच्छे दाने निकाल निकाल के चुनता है, बीवी चुनेंगी, अल्लाह मुझे भी चुने, अल्लाह आपको भी चुने, अल्लाह मेरी आंखों को नूर दे, अल्लाह मेरे हाथ को नूर दे, बीवी हमारी नूरानियत से हमें पहचान ले, गुनाहों का पर्दा ना रहे। बीवी दाखिल जन्नत अपने मोमिन के साथ होंगी। इसीलिए शहजादी ने वक्त मर कहा था कि क़यामत तक आने वाली मेरी सादात को सलाम। अल्लाह अकबर। एक शिया को इमाम शहजादी ने सलाम किया है। हज़रदारू, शहजादी की सवारी के बहुत से अहवाल हैं, बस एक और सवारी का जिक्र करके मसाइब से मुत्तसिल होती। जिसको अल्लाह चाहे अपना इरादा बनाए उसको फातिमा कहते हैं, और फातिमा जिसको अपना इरादा बनाए उसको अब्बास कहते हैं। जनाबे गाजी पर बुलंद तर सलवात। नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है, नामे गाजी से खुशबुए वफा आती है, इनके रोजे से या हुसैन की सदा आती है, इनके रोजे से या हुसैन की सदा आती है। जब भी बैठे अब्बास के परचम के तले, जब भी बैठे अब्बास के परचम के तले, ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस शहजादी आएंगी, चूम रही है, अब्बास के कदमों को वफा चूम रही है, और पहलू में शुजाअत भी खड़ी झूम रही है। हैदर के इशारे पे पलट आया था सूरज, हैदर के इशारे पे पलट आया था सूरज, और हाजी के इशारे पे ज़मीन। सुभान अल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज़े बुलंद तर सलावत। अरसा महशर होगा, बीवी एक ऊँटनी पर सवार होकर या ऊँट पर सवार होकर आएंगी। जिब्राइल, मीकाईल, आगे मौला, इमाम हसन और हुसैन, यकीनन मलाइका की सफ़े बहुत दूर तक होंगी। अरसा महशर में आ रही है बीवी। और अब इस रिवायत को एक और रिवायत से मिलाती हूँ। जब अरसा महशर में बीवी आएंगी और कहेंगी बारे इलाहा, मैंने तेरा करम मांगा है, आज तुझसे इंसाफ मांगती। मेरे बच्चों का क्या कसूर था जो 3 दिन का भूखा प्यासा लबे फरात उन्हें ज़िबा कर दिया गया। आवाज़े कुदरत आएगी, फातिमा अपनी उम्मत के लिए किस शफाअत का क्या सामान लाई हो। एक दफा बीवी पर्दा हटाएंगी हाथों पर से, लोग देखेंगे मेरे गाजी के 2 कटे हुए बाजू हैं।
یعنی شفاعت کے لیے 2 بازو کافی ہیں۔ عزادارو، بعد کربلا جناب زینب نے خواب میں دیکھا کہ ایک روز شہزادی اپنی بیٹی کے خواب میں آئی ہیں۔ جو ہی ماں کو دیکھا زینب تڑپ گئی، باہیں ڈال دی، اماں اب آئی ہو۔ جب گھر لٹ گیا، جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، جب میرا عباس بازو کٹا کے جب اکبر کے سینے پہ پل برچھی، کہا زینب میں تو ہر لمحے تیرے ساتھ رہی ہوں۔ جو بھی مجاہد میدان میں جاتا تھا فاطمہ ساتھ ہوتی تھی، اور جب مجاہد شہید ہونے کے لیے زمین پر آتا، گھوڑے سے گرتا، فاطمہ زہرا باہیں پھیلا دیتی، آ میرے کربلا کے مجاہد۔ اب سنیے درد کے جملے، شہزادی کا درد محسوس کیے، ایام فاطمیہ سے گزر رہے ہیں، یہ زمین سازی ہے، یہ روح سازی ہے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، ہماری مجلسوں کو قبول کر لے۔ آج آپ کے بیٹے عباس کا ذکر ہے، کہتے ہیں زینب ہر مجاہد کو میں نے لیا، لیکن جب میرا عباس بازو کٹا کے زین سے زمین پر آیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور یہی تو ام المؤمنین کر رہا تھا۔ پوچھا تھا اتنا بتاؤ، جب میرا غازی گھوڑے سے زمین پر آیا، جو بھی مجاہد گرتا تھا بازوؤں کا سہارا، ہاتھ کا سہارا لیتا، میرے عباس کے بازو نہیں تھے۔ یہ بتاؤ پہلے نقصان زخمی ہوا، پیشانی پر مٹی لگی، سینہ زخمی ہوا۔ فاطمہ زہرا عجب شان کی مجلس ہے، آج آپ کا تابوت بھی ہے، غازی کا علم بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے جب آپ کی میت اٹھی تھی تو آپ کے 2 بیٹوں نے اٹھائی تھی، چھوٹے تھے، عباس نہیں تھے اس میں۔ آج عباس کی تمنا پوری ہوگی، شہزادی کا تابوت ہوگا، عباس کا علم ہوگا، کہہ رہے ہوں گے اے میری شہزادی جس کے لیے میں خلق ہوا ہوں، میری ریاضت کو قبول کر لیجئے۔ ارے جو کچھ بھی مانگنا ہے یہاں آ کے مانگ لو، عباس کا تو سجدہ ہے دربار آج بھی۔ بی بی تیرے تابوت کو سلام، جس کو تنہائی میں اٹھایا گیا، 2 بچے تھے، علی تھے، ابو ذر تھے، یا چند صحابی تھے، لیکن آج عباس موجود ہے، آج ہم موجود ہیں۔ ہمارے پرسے کو قبول کیجئے یا امام زمانہ، آپ کی جدہ کا تابوت ہے، قبول کیجئے۔